या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना Pranam Prestige. I warmly welcome you all to the dynamic world of marketing where ideas shape the future. Here, my MBA students have explored the innovative concept of Swadeshi Bharat, presenting fresh insights that blend learning with real-world relevance. Swadeshi Bharat is not just an idea, it's a powerful movement that inspires self-reliance, local innovation, and national pride. Here, my MBA students have explored real cases from Madhya Pradesh to understand the Swadeshi initiative, empower communities, and strengthen local market. I am delighted today to introduce their video report which combine academic insights with deeper understanding for Indians' self-reliance vision. Thank you. यह है हिंदुस्तान जिसने ना सिर्फ दुनिया को जीरो दिया, मुसफ़र जो तारीख का आगाज बना, बल्कि अपनी तहजीब और कुदरती विरासत को हमेशा महफूज रखा और नए रास्तों को निगलता रहा। जो हाथ कभी मिट्टी गढ़ते थे, आज वही हाथ धागे में हिंदुस्तान बुन रहे हैं। हर रंग, हर नक्श, एक कहानी, एक विरासत। यह है हिंदुस्तान जहाँ कपड़ा नहीं जज्बा बुनता है। Maheshwari Handloom originated in Maheshwar, Madhya Pradesh in the 18th century under Queen Ahilyabai Holkar. Famous for its lightweight, lustrous texture and fine cotton silk blend. Features reversible borders, badi, striped or checked patterns, and inspired temple motifs. AGI tagged heritage weave blending tradition with modern fashion or sustainability. Chanderi Handloom. Ancient handloom art from Chanderi, Madhya Pradesh, known for sheer texture, glossy finish, and lightweight feel. Crafted on handlooms with silk, cotton or zari using traditional motifs. Holds GI tag, symbol of heritage, sustainability or modern elegance. नमस्ते अंकल। तो अंकल हम क्या है ये फैब्रिक्स प्रमोट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो आप हमें महेश्वरी और चंदेरी साड़ीज़ के बारे में और फैब्रिक्स के बारे में बताइए। महेश्वरी साड़ी कॉटन की आती है, हैंडलूम से भी बनती है और पावरलूम से भी बनती है, मशीन से ही बनती है और हाथ से ही बनती है। तो उसका डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? उसका डिफरेंस कास्ट कीमत के ऊपर होता है। पावरलूम की मशीन की जो साड़ी रहती है वो कम कीमत में रहती है, हैंडलूम की साड़ी कॉस्टली रहती है। और इसमें मतलब फैब्रिक्स का क्या? फैब्रिक्स कॉटन और मिक्स होता है, सिल्क मिक्स।
सिल्क और कॉटन मिक्स होता है। अंकल आपकी दुकान पे सबसे ज्यादा क्या बिकता है? माहेश्वरी, हमारे पास चंदेरी? सिर्फ कॉटन, यही महेश्वरी चंदेरी और बनारसी साड़ी हम बेचते हैं। सबसे ज्यादा यही हमारा प्रोडक्ट, बिकता यही है। बेचते हैं हम। जी। हाँ, और 1966 से मेरी शॉप है। लोग एक्सेप्ट करते हैं, मतलब लोग मतलब सिर्फ महेश्वरी इसको और पसंद करते चंदेरी- हैं, हाँ। इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइकली जो स्टैंडर्ड जो कस्टमर होते हैं, महिलाएं होती है जो कॉटन पहनना पसंद करती है, वो यही साड़ी पसंद करती है। ये तारे से आजकल लोग कुछ अवॉइड कर रहे हैं इसको। मॉडर्न वुमेन्स ज्यादा प्रेफर हाँ। करते होंगे, जो मॉडर्न लड़कियां मॉडर्न लड़के आए, बुजुर्ग लड़के हैं, इस साड़ी चंदेरी महेश्वरी साड़ी कॉटन साड़ी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज की जनरेशन के लिए? भाई जनरेशन जो पसंद कर ले वो ठीक है। बाकी हम लोग तो सिर्फ यही साड़ी बेचते हैं, महेश्वरी चंदेरी कॉटन में और बनारसी। और ये मेरे शॉप 1960 से शॉप है, 1960 से। लाइन में कहना हो तो आपके लिए स्वदेशी कपड़ा क्या मायने रखता है? सबसे बढ़िया अभी स्वदेश कपड़ा ही है। सिंथेटिक तो बहुत बिकता है, जी लेकिन स्वदेशी ही रहता है। जी। Bagh Handloom, traditional handloom weaving art from Bagh, Dhar district, Madhya Pradesh, rooted in tribal heritage and river culture. Known for its soft cotton texture, earthy tones, and natural dye finish that reflect the region's craftsmanship, woven on pit looms using cotton and silk yarns, often adorned with Bagh print-inspired geometric or floral patterns, holds GI tag status, celebrated for its sustainable weaving practices and revival of ancient textile traditions. He is Shri Ismail Suleiman Ji Khatri, who was been awarded the National Award for Handicrafts in the year 1984 for Bagh printing. Attic Handloom, ancient wax-resist dyeing art that flourished in India, Madhya Pradesh, Gujarat, and Rajasthan, and later gained fame in Indonesia. Traditionally done on cotton and silk, known for its crackled patterns, vibrant colors, and artistic detailing, designs are drawn with wax, using kalam or brush. Then dyed in layers, the wax resists color, creating unique motifs. Celebrated for its handcrafted charm, eco-friendly process, and fusion of tradition with contemporary fashion. Zari Zardozi, ancient royal embroidery art that flourished during the Mughal era, especially in Lucknow, Bhopal, and Hyderabad, done on rich fabrics like silk, velvet, and satin, adorned with gold and silver threads, beads, and sequins. Intricate designs are hand embroidered using metallic threads, zari, with motifs inspired by flora, fauna, and royal architecture. साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये
हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। फैशन बदले परंपरा नहीं, चूज स्वदेशी। जय हिंद, जय भारत, जय प्रेस्टीज।